Hey everyone, today I am going to deal with the concept of state enshrined under the Constitution of India. As we all know that the fundamental right portion starting thereby from Article 12 to 35 covers a huge portion and it is called as the backbone of the entire constitution. So the constitutional framers while drafting the constitution for India, especially while dealing with the concept of state and fundamental rights, they went back directly to the 12th century and they realized the condition of United Kingdom along with the concept of Scotland and all those areas. So they discovered that up to 12th century in United Kingdom and England basically there was a condition of monarchy system. The territory and the region of those areas were being covered and being governed by none other than the kings and queens prevailing at that point of time. So precisely by the year of 2015 there occurs a concept and that concept was called as Magna Carta. So Magna Carta was basically nothing but it was a concept like during the concept of Magna Carta the entire political scenario, the ruling scenario you can say, was like it was made understood to the people that yes, you are the ultimate authority and the persons who are going to govern you is not the queen and the king, but you are supposed to be governed by a kind of system, by a kind of government, and that government need to be selected by none other than you only. So it was a kind of for the first time in the entire world the concept of democracy was realized from the concept of England and Scotland. So from that point of time Magna Carta was occurred. So the constitutional framers while drafting the constitution for India, they considered the view of Magna Carta and hence they have incorporated the concept of Magna Carta. Magna Carta long back in 1215th century, in the year of 1215, there was a king naming thereby King John. So King John was in the initial days he was like avoiding the concept of Magna Carta to be implemented upon. The reason behind that was because he was knowing that fact that if Magna Carta is being implemented then his system, his rule will be like back-footed. वो ये जानते थे कि अगर ये मैग्ना कार्टा आ जा रहा है तो उनका रूल करना फिर वो टफ हो जाएगा, यहाँ डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट हो जाएगा और इस कंडीशन में मोनार्की सिस्टम जो है वो बैकफुट पे चली जाएगी. इस कारण वो बहुत अपना एफर्ट किए कि इसको वो ना लाने दे, बट उस समय ऐसा एक रिवॉल्यूशन हो चुका था कि मैग्ना कार्टा को आना पड़ा और इसी कंसेप्ट को द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स वाइल ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन वो इसे अडॉप्ट किए. अब देखिए आर्टिकल 12 इज़ लाइक लोकस स्टैंडाई for the entire fundamental right. Like fundamental right basically starts from Article 14 and moving up to the concept of Article 32. 33, 34, 35 is also there, but that is covering the concept of military and martial laws. So Article 12 ये एक तरह का बेस क्रिएट करता है कि ये लोकस क्या होगा, फंडामेंटल राइट किस पे लागू होगा, क्या होगा, तो ये आर्टिकल 12 में बात करता है. आप देखिए आर्टिकल 12 का बेसिक कंसेप्ट है व्हाट इज स्टेट, व्हाट इज स्टेट. सो यहाँ पे अब ये ध्यान देने की बात है कि ये स्टेट यहाँ पे दैट इज़ नॉट कवरिंग एनी काइंड ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी फॉर दैट मैटर. ये यहाँ पे स्टेट जो है ये इट इज़ समहाउ डिफरेंट. व्हाट इज स्टेट अंडर आर्टिकल 12, दिस वी आर गोइंग टू डील इन दिस वीडियो. नाउ सी आर्टिकल 12 का जो स्टेटमेंट है वो इस तरह से मूव करता है. व्हेन वी गो विद द बेयर एक्ट लैंग्वेज इट सेज दैट अंडर द कंसेप्ट ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12 it consists of all the government authorities which is in direct control of the central government, that is union government. The second thing is that under the direct control of the state government. In the concept of union government that upper house and lower house is there, Lok Sabha and Raj Sabha are there. In the state government side both the state legislature in those states where two state legislatures are there, and for that matter in all the remaining state where one state legislatures are there like legislative assembly and legislative council for that matter in states like Bihar, Maharashtra and something like that. There are 7 states which are having state council also. I am going to deal with this concept in the later on videos. Now for this point of time state का मतलब ये यहाँ पे है कि जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं सेंट्रल लेवल पे क्या आ गया भाई, तो 2 चीज़ें आ गई. एक आ गई लोकसभा एंड राज्यसभा के कंट्रोल से जो भी होगा, लॉज बनेंगी, जो कुछ भी होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ स्टेट. द सेकेंड थिंग इज़ दैट स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल जिस स्टेट्स में ये दोनों मिलकर जो भी लॉज बनाएंगी वो स्टेट कही जाएगी. ठीक है. अब थर्ड इसमें आता है दैट इज लोकल अथॉरिटी एंड द फोर्थ थिंग इज दैट द अदर अथॉरिटीज. सो नाउ सी, नाउ आई एम गोइंग टू डील विद ऑल दिस 4 concept
in a different manner, in a compartment manner, so that we can understand it in a better manner. Now see, friends, जो यूनियन गवर्नमेंट का जो लिस्ट है, यूनियन गवर्नमेंट का जो मैटर है, उसमें जो कंसेप्ट आता है वो स्टेट के अंदर, that will be considered under the concept of state. Now see, for example friends, take for example that any law which is of national importance is being drafted by none other than by the central government and by the parliament itself. So now take for example IT Act of 2000. So recently the Supreme Court ruled down section 66A of the IT Act as unconstitutional. So now see, ये जो IT Act है कौन बनाया? ये बनाई दोनों पार्लियामेंट, बोथ द हाउसेज. फर्स्ट द बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन बोथ द हाउसेज and subsequently that has been passed from both the houses and followed by the signature of the president. The moment it gets the signature, the assent of the president, it becomes a law, it becomes an act. So now that act has been created by the central government. So it means that the central government via the medium of Lok Sabha and Raj Sabha are considered to be a part of state. And now see here, जुडिशरी जो है वो इसका चेक एंड बैलेंस करता है कि अगर जो भी लॉ जो है वो अगेंस्ट में जा रहा है, पब्लिक ऑर्डर को डिस्क्वालीफाई कर रहा है, या फिर किसी जो बेसिक जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको हैम्पर कर रहा है, तो जुडिशरी इज़ देयर टू प्रोटेक्ट दैट. एंड अकॉर्डिंगली सेक्शन 66A वाज अगेंस्ट द कंसेप्ट ऑफ आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट था ये, तो इसलिए इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया. तो स्टेट के डिफिनेशन में फर्स्ट जो चीज़ आती है वो है सेंट्रल अथॉरिटी की. सेंट्रल अथॉरिटी में क्या क्या आ जाती है भाई? तो सेंट्रल अथॉरिटी में सबसे पहले आती है लोकसभा, राज्यसभा और वो सारे गवर्नमेंट अथॉरिटी. रिमेंबर दिस, लोकसभा, राज्यसभा एंड ऑल दो अदर गवर्नमेंट अथॉरिटीज which are directly controlled by the concept of central government. That's it, under the first clause, that is central government, union. The second is state. State means that all those authorities which are in direct control of the state. जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, वहाँ पे दोनों लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली वो साथ में काम करेंगी एंड देन दे विल पास ए लॉ. और जहाँ पे बस सिंगल हाउस है वहाँ पे वो हाउस जो है वो अपना काम करेगी और फिर जो है लॉ पास करेगी. तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि स्टेट लेवल पे 3 चीज़ें आती हैं. पहली तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, द सेकंड थिंग इज लेजिस्लेटिव काउंसिल इन दोज स्टेट्स वेयर लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्ट. देयर आर 7 states. And the third one is like all those government authorities which are being in direct control of the state government, respective state government. Now the third thing comes over here is like the third concept is local authority. अब ये देखिए लोकल अथॉरिटी का जो डेफिनेशन है ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा नहीं है कहीं. अगर हम लोग यूनियन अथॉरिटी या फॉर दैट मैटर स्टेट अथॉरिटी की बात करें तो ये भी डायरेक्टली दे नहीं रखा है, बट इसका जो कंसेप्ट है ये पूरा एक डिटेल मैनर में ये पार्ट वाइज डिस्कस है कॉन्स्टिट्यूशन में ही. But the concept of local authority has not been discussed under the Constitution of India. So for that matter, for understanding the concept of local authority, we need to refer the concept of General Clauses Act. और जनरल क्लॉजेज एक्ट का जब हम प्रोविजन सेक्शन 3 पढ़ते हैं तो उसमें हम ये पाते हैं कि जनरल क्लॉजेज एक्ट में ही जो कंसेप्ट है लोकल अथॉरिटी का दे रखा है. और उसमें ये अगर जनरल क्लॉजेज एक्ट का अगर लैंग्वेज की बात करें तो उसमें ये दे रखा है कि लोकल अथॉरिटी वो सारी अथॉरिटी होगी जिसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का डायरेक्ट कंट्रोल हो, जिसमें लोकल अथॉरिटी का डायरेक्ट कंट्रोल हो. मतलब अब वहाँ पे भी लोकल अथॉरिटी वर्ड है कि कहने का सेंस ये है कि जो भी अथॉरिटी जिसका कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा किसी भी अलग अथॉरिटी के पास है तो वो किस अथॉरिटी में आ जाएगी भाई? तो वो आ जाएगी लोकल अथॉरिटी में. ये लॉजिकल बात है. इफ़ सपोज अ पर्टिकुलर थिंग इज देयर, इट इज़ नॉट बीइंग कंट्रोल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नाइदर बीइंग कंट्रोल बाय द स्टेट गवर्नमेंट, सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दैट विल सर्व फॉर द पर्पस ऑफ लोकल अथॉरिटी. सो इन द सेम मैनर लोकल अथॉरिटी, अंडर लोकल अथॉरिटी all those officials, all those government employees and all those government authorities come within that ambit which are not falling within the ambit of central authority and the state authority. So that will be covered under local authority. अब local authority में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, पंचायत आ जाती है, ब्लॉक्स आ जाती है, बिकॉज इनका डायरेक्ट देखिए इनका इनडायरेक्ट कंट्रोल तो होता ही है बट ये डायरेक्ट कंट्रोल होता नहीं है, तो इसे क्लासीफाई कर दिया जाता है लोकल अथॉरिटी में. फोर्थ जो है वो सबसे ज़्यादा डिस्प्यूटेड है. फोर्थ बात करता है अदर अथॉरिटीज़ का. अब ये देखिए here it is to be noted that other authorities are neither defined under the concept of General Clauses Act or nor it has been dealt under the Constitution of India.
So now a big question arises that what are the other authorities which Article 12 basically talks about, and this is the major part from which in the competitive examination question arises. They will ask that what is local authority, especially when you are appearing for mains round of examination in judicial services. They will give you in long answer that write about other authorities. So other authorities का concept ये है. अब इसमें देखिए, इसमें एक सीरीज वाइज केस आया. केस वाइज अगर हम लोग ये डील कर रहे हैं, बिकॉज ये जुडिशरी ही इसे एक्सप्लेन की है कि व्हाट विल बी द कंसेप्ट ऑफ अदर अथॉरिटीज़. देखिए, जहाँ भी एक्ट और लेजिस्लेशन क्लियर नहीं हो पाते हैं, देयर कम्स द पिक्चर ऑफ जुडिशरी एंड दे अप्लाई देयर जुडिशियल माइंड एंड इंटरप्रीट द लॉ अकॉर्डिंगली. सो यहाँ पे भी ये कंसेप्ट आ गए कि अदर अथॉरिटीज़ के लिए सीरीज ऑफ जजमेंट एंड सीरीज ऑफ केस लॉ हैज़ बीन फॉलोड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. तो पहला केस इसमें आया सांताभाई वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास. इसमें ये बोला गया कि लोकल अथॉरिटी में ऑल द अथॉरिटीज़ विल कम विच आर इन डायरेक्ट कंट्रोल एंड विच आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द पीपुल्स ऑफ द सोसाइटी. इसमें ये बात किया गया कि ऐसे सारे अथॉरिटी जो डायरेक्ट कंट्रोल कर रहे हैं किसी पीपुल को या फिर सोसाइटी को, वो जो हैं लोकल अथॉरिटी कहे जाएंगे. अब यहाँ पे देखिए, ध्यान देने वाली बात ये थी कि यहाँ पे एक पार्टिकुलर रेंज की बात की गई कि वो सारे अथॉरिटी के लोग जो हैं वो लोकल अथॉरिटी में कहे जाएंगे. तो अब यहाँ पे देखिए, एक टर्म निकल के आया इन लॉ, वी कैन से दैट एडजस्टेंट जनरलिस. एडजस्टेंट जनरलिस का कंसेप्ट ये है कि ऑफ लाइक नेचर. सो ऑल दोज कंसेप्ट, all those authorities which are somehow prevailing in a same concept, in a same channelized manner, so that will be called as other authority according to this case law. मतलब इस केस लॉ में ये हेल्ड किया कि जो भी अथॉरिटी है जो एक तरह की काम कर रही है, इफ़ सपोज अथॉरिटी इज़ देयर विच इज़ डिलीवरिंग इट्स जजमेंट, सो इट्स डिलीवरिंग इट्स जजमेंट इन द सेम मैनर. इन एवरी अदर केस इट इज़ डिलीवरिंग इट्स जजमेंट इन द सेम मैनर. सो ये एडजस्टेंट जनरलिस का कंसेप्ट हो गया. फिर बाद में आफ्टर 8 years ऑफ टाइम स्पैन, लाइक 54 का ये केस है, 62 में एक और केस आया. इस केस का नाम था उज्जम बाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी ऑफ 1962. ये रिपोर्टेड जजमेंट है. इसमें ये सुप्रीम कोर्ट थोड़ा एक्सटेंड अपना बढ़ाई एंड दे इंटरप्रिटेड दैट यस, एडजस्टेंट जनरलिस नीड टू बी कंसिडर्ड अपॉन फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ अदर अथॉरिटीज अंडर आर्टिकल 12. नेवरदलेस, apart from adjustant generalities, other factors need to be considered for the definition of other authorities. Like वो बोले कि adjustant generalities तो ज़रूरी है ही कि एक फैक्टर होना चाहिए भाई, कोई एक कंक्रीट ज़रूरत होना चाहिए, बट उसके अलावा भी कुछ बहुत सारे सराउंडिंग कंडीशन है जो कि फुलफ़िल होनी चाहिए, और वो फुलफ़िल होने पे ही जो है वो स्टेट के डिफिनेशन में अदर अथॉरिटी का एम्बिट बढ़ सकेगा. तो इसमें कंसेप्ट ये था बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का कि एडजस्टेंट जनरलिस के बाहर आई सुप्रीम कोर्ट और इसका डायमेंशन जो है एक्सटेंड की बहुत बड़े लेवल पे की. ठीक है, बट अभी भी कंसेप्ट क्लियर नहीं था. फिर उसके बाद में आया थर्ड केस, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा. ये रहा आर.डी. सेट्टी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का. इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट बाय ऑनरेबल जस्टिस P.N. भगवती, द एपेक्स कोर्ट हेल्ड that for the consideration of other authority under Article 12, there are certain tests which need to be laid upon. And if suppose an authority for that matter, if an authority is fulfilling all those conditions, or for that matter any of those conditions, then only that authority can be supposed to be a part of other authority. So इसमें सुप्रीम कोर्ट है लेट डाउन कर दी कि किसी भी अथॉरिटी को जो यूनियन और स्टेट लिस्ट में नहीं फॉल करती है और लोकल अथॉरिटी में, वो अगर इन सारे फैक्टर्स में से सारे फैक्टर्स या कोई एक फैक्टर फुलफ़िल कर दे तो वो स्टेट के एम्बिट में आ जाएगा. अब इसमें क्या क्या वो अथॉरिटी पॉइंट्स रखे. पहला पॉइंट ये था कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल अगर किसी अथॉरिटी पे है तो वो अदर अथॉरिटी के डेफिनेशन में आ जाएगा. ध्यान से सुनिएगा. इफ़ एनी अथॉरिटी is in direct or like apparent control of the central or state authority, then that will be covered under the ambit of other authority under the concept of Article 12. दूसरा concept ये रखे कि फाइनेंशियली अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और फॉर दैट मैटर स्टेट गवर्नमेंट और फॉर दैट मैटर द लोकल गवर्नमेंट इज़ कंट्रोलिंग दैट अथॉरिटी, लाइक उसकी फंडिंग हो रही है, उसको फाइनेंशियल बैकअप मिल रहा है, सो देन दैट अथॉरिटी विल ऑल्सो बी कवर्ड अंडर द कंसेप्ट ऑफ अदर अथॉरिटीज़. तो पहली कंसेप्ट ये हुआ कि कंट्रोल है डायरेक्ट या अपेरेंट. दूसरा कंडीशन ये हुआ कि इकोनॉमिकली कंट्रोल है. तीसरा कंडीशन ये हुआ कि इन दोनों के बीच का लिंकअप है कि हाँ भाई कभी 10 दिन के लिए वो इकोनॉमिकली हेल्प कर रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट,
फिर अगले 20 दिन के लिए महीने के बचे वो एक एम्बिट वाइज कंट्रोल कर रहा है, तो वो भी जो है अदर अथॉरिटी में आएगा। तो इस केस में बेसिकली ये हेल्ड हुआ कि कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो डायरेक्ट या अपेरेंट कंट्रोल में है, या तो इकोनॉमिकली या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज, वो अदर अथॉरिटी में कंसिडर होगी। इसमें बहुत सारे एग्जांपल हो गया, ONGC आ गई, LIC आ गई, बिकॉज इसमें देखिए क्या है, बिकॉज दे आर नॉट बेसिकली स्टेट, they are not authority, but as we all know that ONGC is being supported by the administrative control of the central government, LIC is being funded by the concept of union, there is a economical backing, so all this concept when taken all together becomes a part of other authority under the concept of article 12 enshrined under the constitution of India। तो ये तीनों केस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि जो खासकर एग्जाम्स में आते हैं कि BCCI इज ए स्टेट और नॉट, तो BCCI स्टेट है कि नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट काफ़ी अभी रिसेंट टाइम में डिसाइड किया। ये बहुत ही दिन तक क्लैश बना रहा कि BCCI स्टेट है कि नहीं, बिकॉज ये अदर अथॉरिटी के कंसेप्ट में आ सकता है। इसे फंडिंग कर रही है गवर्नमेंट, BCCI को फंडिंग करती है, बट द थिंग इज़ दैट BCCI इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, इसका कोई बैकिंग नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव बैकिंग नहीं है, कोई एक सिस्टम नहीं है मतलब जो कंट्रोल कर सके। तो 2005 में जीव टेलीफिल्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के थ्रू इन 2005 द अपेक्स कोर्ट हेल्ड दैट BCCI इज़ नॉट अ स्टेट। वाई इट इज़ नॉट अ स्टेट? बिकॉज the economical condition are being controlled by the central government itself, but the sole authority is not being fulfilled for the nation, इसलिए BCCI को स्टेट के एम्बिट में नहीं रखा गया। ये इंपॉर्टेंट है, BCCI इज़ नॉट अ स्टेट। नाउ क्वेश्चन अराइज दैट जुडिशरी इज अ स्टेट और नॉट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत सारे लॉ ग्रेजुएट्स ने मेरे से क्वेश्चन पर्सनली भी कर रखा है। तो इस पे मैं ये बताना चाहूँगा, ये मेरे ब्लॉग पे मेरे मेल भी आता है कि व्हाट इज़ स्टेट सर, काइंडली टेल मी व्हाट इज़ जुडिशरी इज अ स्टेट और नॉट। सो नाउ सी फ्रेंड्स, जुडिशरी इज़ लाइक एज वी ऑल नो, जुडिशरी इज़ इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी से किसका कुछ लेना देना है नहीं। अब यहाँ पे ये कंसेप्ट आ जाता है कि अशोक हुर्रा वर्सेस रूपा हुर्रा केस ऑफ 2002, इन दैट सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज द कंसेप्ट ऑफ आर्टिकल 142। अब आर्टिकल जब आप पढ़िएगा तो उसमें एक वर्ड है डिस्कवरी। जब आप बेयर एक्ट का रीडिंग दीजिएगा तो उसमें बस एक ही वर्ड को आपको कैच करना है, वो डिस्कवरी। डिस्कवरी का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी एक्सटेंट तक जा सकता है, वो जो मन वो कर सकती है, जजमेंट दे सकती है, जजमेंट अपना डिलीवर कर सकता है। किस पर्पस को फुलफिल करने के लिए? तो वो पर्पस है डिस्कवरी। किसी चीज़ की खोज के लिए वो सुप्रीम कोर्ट कुछ भी जजमेंट, वो एनीथिंग इट कैन पास अपॉन, सो डिस्कवरी वर्ड वहाँ पे। तो अशोक हुर्रा रूपा हुर्रा में क्या हुआ था, ये 13B म्यूचुअल डाइवोर्स का कंसेप्ट है फैमिली लॉ में, हिंदू मैरिज एक्ट में। तो उसमें कूलिंग पीरियड के कंप्लीट होने के पहले ही सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज कर लिया 142 और जो है डाइवोर्स ग्रांट कर दिया, म्यूचुअल डाइवोर्स। तो अब यहाँ ये बोला गया कि जब अब भाई ये डाइवोर्स तो दे दिया गया, तो अब तो पूरा एट ए लार्ज इम्प्लाई होगा ना। तो ये हेल्ड हुआ अशोक हुर्रा वर्सेस रूपा हुर्रा के केस के थ्रू कि व्हेन जुडिशरी is acting judicially, when the judges are delivering their judgment, so at that point of time judiciary will be considered as a part of state, and when the judiciary is working on its administrative side, then it will not be considered as a part of state। ध्यान से सुनिएगा, जुडिशरी जब अपने जज के थ्रू कोई जजमेंट देती है, कोई ऑर्डर पास करती है, तो उस समय वो स्टेट कही जाएगी। क्यों कही जाएगी? बिकॉज जजमेंट जो है वो रिम में होता है, दैट विल अप्लाई टू द इंटायर सोसाइटी एट लार्ज। और वहीं दूसरे साइड जब जुडिशरी जो है, अब यहाँ पे जुडिशरी में तीनों कंसेप्ट आ जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब जब ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कर रही है, मतलब जैसे रजिस्ट्रार जनरल होते हैं, सेक्रेटरी जनरल होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी रजिस्ट्रार होते हैं, तो वो जब एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे कि कोर्ट का सिस्टम क्या रहेगा, कितने बजे से कितने बजे तक कोर्ट बैठेगी, तो उस समय जो है वो इंडिपेंडेंट काम कर रही है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जुडिशरी जो है इन स्टेट का पार्ट नहीं कही जाएगी, और जब वो जजमेंट देगी तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ स्टेट। सो सिंपल। hope you are in a position to understand that what I am trying to say it to you। जुडिशरी जो है, जब जजेस अपनी बातों का जजमेंट डिलीवर करते हैं तो वो स्टेट कही जाएगी। बट जुडिशरी जब अपने ऑफिसर्स के थ्रू, रजिस्ट्रार्स, सेक्रेटरी जनरल के थ्रू अगर कोई सर्कुलर पास करे, कोई रूल्स बनाए, तो उस समय वो स्टेट नहीं कही जाएगी। सो दिस इज़ द मेन कंसेप्ट। सो होप यू लाइक दिस वीडियो।
and stay tuned with me for the upcoming videos. Thank you so much for watching. Thank you. Have a nice day.